A very good morning, grade 6. Today we are going to start our new topic, basic of geometry. I hope you already heard about geometry, but I would like to tell you about the geometry first. Geometry is derived from Greek word geo means earth and metron means measure. So basically, to measure anything in the world is included in geometry. Geometry in daily life. How can we use geometry in daily life? You can see here such examples are there: art, measurement, architecture, engineering, cloth designing, etc., etc. So you already heard about arts, measurement, this keywords which we use in daily life. Architecture, one of the word which is used for to design or build a house, or the interior designing. Engineering, already you heard about engineering. You know very well about engineers. They use geometry in daily life. Although you can search yourself also, how can we use geometry in these fields? So it is your task. You can find out. Fine. So let's talk about the basics of geometry, which all things we have to cover in the basics of geometry, such as point, line segment, ray, plane, parallel lines, intersecting lines, concurrent lines, perpendicular lines. So these all are the topics or points we have to cover today. So let's start with the point. A point. Point means what? It is represented by a small dot and denoted by a capital letter. It has no shape and no size. कोई भी एक पॉइंट जिसको हम एक स्मॉल डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक छोटा सा डॉट, और जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से. कोई भी एक लेटर, ए लेंगे तो कैपिटल ए लेंगे, बी लेंगे तो कैपिटल बी लेंगे, सी लेंगे तो कैपिटल सी, लाइक दिस. तो उसको डिनोट करेंगे किसी भी कैपिटल लेटर से. बट इट हैज़ नो शेप एंड नो साइज. इसका कोई शेप नहीं होता है, ना कोई साइज होता है पॉइंट का. Yes, the best example for the point is we can take a tip of a needle. Yes, किसी भी सुई का एक last point, a tip of a needle is called a point, we can say. Fine. So let's move forward. Line. What is line basically? A line is a collection of points going endlessly in both directions along a straight path. You can see here we have one straight line. यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसके पॉइंट्स, एंड पॉइंट्स हमने एक्स एंड वाई लिए. दीज आर नॉट एक्चुअली एंड पॉइंट्स, बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो है कभी एंड होती ही नहीं है. फाइन. दैट्स वाई आई हैव टोल्ड यू अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स गोइंग एंडलेसली. एंडलेसली मतलब कि कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन. इसलिए इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करेंगे. जो एरो बनाए लास्ट में, इट मीन्स कि ये कभी ख़त्म नहीं होगी. लाइन, स्ट्रेट लाइन हमेशा बढ़ती जाती है. चाहे वो राइट साइड में जा रही है तो राइट साइड में बढ़ती जाएगी, लेफ्ट में तो लेफ्ट में बढ़ती जाएगी. बट हमें यहाँ रिप्रेजेंट करना था, इसलिए हमने इसको रिप्रेजेंट करा एक्स वाई के नाम से. तो एक्स वाई इसको डिनोट कर सकते हैं. एक्स वाई के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन का सिंबल बना देंगे तो यह डिनोट हो जाएगा एक्स वाई, या फिर वाई एक्स के नाम से हम डिनोट कर सकते हैं, लाइक दिस. फाइन. It can be extended infinitely in both the directions. Fine. And it can be named by taking any two points on the line, जैसे कि हमने x and y लिए. Fine. We call it line xy and write it as xy के above symbol और yx के above symbol. It can also be named by means of a small English letter. हम एक small English letter से भी इसको डिनोट कर सकते हैं. एक्स वाई ना लिख के अगर मैं यहाँ पे एम लिख दूँ, एल लिख दूँ, स्मॉल एल, तो भी वो रिप्रेजेंट हो सकता है. लेट्स टॉक अबाउट द लाइन सेगमेंट. व्हाट अबाउट द लाइन सेगमेंट? अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. कैन वी से कि एक लाइन सेगमेंट जो होती है वो किसी भी एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट होती है, छोटा सा. अगर इसका छोटा सा एक पार्ट निकाल लिया जाए तो वो लाइन सेगमेंट होगा. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. यू कैन सी हियर टू एंड पॉइंट्स है. यहाँ पर कोई चांस नहीं है कंटिन्यूसली चलने का, ना लेफ्ट में ना राइट में. सेगमेंट, इट इज सेगमेंट, दैट्स वाई एंड पॉइंट होते हैं इसके. इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स एंड हैज़ अ फिक्स्ड लेंथ. इसकी फिक्स्ड लेंथ होगी. वी कैन मेजर इट ऑल्सो बाय यूजिंग रूलर. वी नेम the segment by its
एंड पॉइंट्स लाइक आर एस, हमने यहाँ पे डिनोट करा है आर एस के ऊपर एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट का सिंबल हुआ, तो आर एस हम इसको डिनोट कर सकते हैं लाइक दिस, आर एस के ऊपर लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे ए बी होगा तो ए बी के ऊपर लाइन सेगमेंट लाइक दिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू रे। व्हाट अबाउट रे? अ रे हैज़ वन एंड पॉइंट, यू कैन सी वन एंड पॉइंट ए, इसका एक ही एंड पॉइंट है जो कि डॉट से रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे। इट एक्सटेंड्स endlessly in one direction only, you can see। ये जो B पॉइंट है ये मैंने रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखा है, बट इसको वन साइड से तो एंड पॉइंट होगा बट अदर साइड जो होगा वो एंड पॉइंट नहीं होगा, दैट्स वाई वी हैव पुट हियर व्हाट एरो। जो एरो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये कंटिन्यूसली चलती जाएगी लाइन। तो रे को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक एंड पॉइंट से, और अदर पॉइंट जो होगा एंडलेसली आगे तक मूव होता रहेगा। इट कैन बी डिनोटेड एज ए बी और उसके ऊपर उसका सिंबल, रे का सिंबल। द एंड पॉइंट इज मैंशन फर्स्ट वाइल नेमली अ रे। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बी ए इज नॉट अ रे, एज बी इज नॉट द एंड पॉइंट इन दिस केस। सो हम यहाँ पर इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि बी ए इज नॉट अ रे, बी ए इज नॉट अ रे बट ए बी इज अ रे, क्योंकि जो एंड पॉइंट होता है उसको पहले लिखेंगे उसका लेटर, और जो बचेगा उसका बाद में लिखेंगे। अगर सपोज यहाँ पे एम एन होता तो एम एन इज़ अ रे बट एन एम इज़ नॉट अ रे, फाइन। तो हम ध्यान रखें इस चीज़ का कि ए बी लिखेंगे, बी ए नहीं लिख सकते इसको। नेक्स्ट इज प्लेन। प्लेन इज व्हाट डू यू मीन बाय प्लेन? कैन एनी वन गेस? फाइन। A smooth flat surface which extends endlessly in all the directions is called a plane। तो एक प्लेन जो होता है वो एंडलेसली किसी भी डायरेक्शन में बढ़ सकता है। हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया है, यहाँ पे एक पैरेललोग्राम लिया है, बट ये कोई स्पेसिफिकली नाम नहीं है कि प्लेन का नाम रेक्टेंगल होगा या पैरेललोग्राम होगा। वो कैसे भी शेप का हो सकता है, लेकिन वो एक प्लेन होता है जिसके ऊपर हम कुछ भी लेटर्स या कुछ भी लाइन्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो मैंने एक छोटा सा प्लेन बनाया है जो कि रेक्टेंगल शेप का है, और उसके अंदर लेटर ए लिखा है, और यहाँ पर एक छोटा सा प्लेन बनाया है जो कि पैरेललोग्राम शेप है, बट उसके अंदर मैंने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मीन्स व्हाट? एक ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन में ना आने वाले हो, एक ही लाइन में नहीं आने वाले, तीनों अलग अलग पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में लाई करने वाले पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहा गया, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहा गया है। सॉरी, मैंने कोलिनियर बोला, उसे नॉन कोलिनियर मानेंगे आप। एक्स वाई एन जेड आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, क्योंकि ये एक लाइन में ना आने वाले पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर। Fine. Let's move forward. Parallel lines L and M, you can see here these two are the parallel lines. The distance between both the lines are equal. यहाँ से भी आप मेज़र करोगे तो भी जो जितना मेजरमेंट होगा उतना ही यहाँ से भी मेजरमेंट करने पे आंसर आएगा। तो दोनों का डिस्टेंस जो है वो सेम होगा, चाहे वो कहीं से भी आप कहीं से भी मेज़र करें तो। और पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट टू ईच अदर, जो कभी आपस में नहीं मिलती है। L पैरेलल टू M लाइक दिस, इसका सिंबल है L पैरेलल टू M, हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दो लाइन कभी आपस में नहीं मिलेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट वन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आर दोज लाइंस विच इंटरसेक्ट टू ईच अदर, लाइक वी हैव टेकन P and Q आर द 2 लाइंस एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहा गया है इसको, O को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नाम देंगे। और P and Q जो 2 है लाइन है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, आपस में कट करती हुई, टच करती हुई जा रही है एक दूसरे को, इसलिए इनका नाम है इंटरसेक्टिंग लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस के लिए स्पेसिफिकली हमें 2 से ज़्यादा लाइन कहनी होगी कि 2 से ज़्यादा लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट करती है, चाहे वो 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो लाइंस को कॉन्करेंट लाइंस कहा गया है। तो यू कैन सी हियर, अगर हम 2 लाइंस में एक लाइन और बढ़ा देंगे इंटरसेक्ट करते हुए इस पॉइंट से, तो वो कॉन्करेंट लाइंस कहलाएगी, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस यू कैन सी हियर वी हैव टेकन 2 एग्जाम्पल्स, जैसे लाइक OA एंड OB। हमारे पास 2 रेज है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। रे क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि एक एंड पॉइंट है और एक कंटिन्यूसली जाने वाला पॉइंट है। इधर भी एक एंड पॉइंट O, B कंटिन्यूसली पॉइंट है, तो 2 रेज निकल रही है जो कि O पॉइंट से निकल रही है, और ये आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ पर वो 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर 90 डिग्री एंगल इंटरसेक्ट हो रही है दैट मीन्स इट इज़ परपेंडिकुलर लाइन। तो वी कैन रिप्रेजेंट लाइक दिस, AO परपेंडिकुलर टू OB, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। उल्टा T को उल्टा कर देंगे तो परपेंडिकुलर का साइन हो जाएगा।
वन मोर एग्जाम्पल, एल और एम, जैसे कि मैंने बताया था कि एल और एम छोटे स्मॉल लेटर से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एल और एम दो स्ट्रेट लाइन से, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन क्यों, क्योंकि दोनों तरफ एंड पॉइंट्स है, नॉर्मल लाइन से ही है। तो सॉरी दोनों तरफ एंड पॉइंट्स नहीं है, दोनों तरफ कंटिन्यूसली बढ़ रही है आगे, इसीलिए इनको स्ट्रेट लाइन कहा गया है। और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट हो रही है 90 डिग्री पर, तो इसको भी रिप्रेजेंट करेंगे एल परपेंडिकुलर टू एम। तो दीज आर द परपेंडिकुलर लाइन्स। सो दीज ऑल आर द बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री, जो कि आपको समझ में आए होंगे आज बहुत अच्छे से। तो आई होप आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से समझ कर सकते हैं अपने आप। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ टॉपिक।